آج میں جناتا غلام قسط نمبر 40 کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک صحافی کی حیثیت میں میرے لیے اس کاروبار کے گھنونے پہلو اب پوشیدہ نہیں رہے تھے۔ جنات، بھوت پریت، کالا جادو، نظر وغیرہ جیسے سحری معاملات کے علاج معالجم اور روحانیت کے در پردہ خانقوں میں کاروبار کا چراغ جلانے والے بہت سے چہرے میرے سامنے بے نقاب ہو رہے تھے۔ میں ان تلخ حقائق سے کبھی نظریں نہیں چرا سکتا تھا۔ یہ سب کاروبار اور ڈھکوسلا بھی ہو رہا تھا اور پراسرار دنیا کے راز بھی مجھ پر آشکار ہو رہے تھے، لیکن ایک عالم دین کو یوں صرف اللہ کی خوشنودی کی خاطر ایک سحری عمل کا توڑ کرتے دیکھ کر مجھے حیرت آمیز خوشی ہو رہی تھی۔ حیرت تو اس بات پر تھی کہ انہوں نے ایک پیسہ بھی وصول نہیں کیا تھا، اور خوشی اس بات کی تھی کہ انہوں نے سحری توڑ کے لیے قرآن پاک کی آیات مبارکہ کے علاوہ کوئی ایسی غیر اسلامی حرکت نہیں کی تھی جسے دیکھ کر میرے دل میں چبھن ہوتی۔ میں اپنے دلی جذبات کا علامہ صاحب سے اظہار کیے بغیر نہ رہ سکا۔ حضرت، آپ نے اس دکھیاری عورت کے بچے کو ایک عذابناک مرض سے بچا لیا ہے۔ حیرت ہے آپ نے اسے صدقہ خیرات کے نام پر کچھ بھی طلب نہیں کیا۔ میری بات سن کر وہ گہری سانس بھر کر بولے۔ قبل اس کے کہ وہ کچھ بولتے، 3 نوجوان اندر داخل ہوئے اور کتاب بنا کر علامہ صاحب سے ہاتھ ملا کر ان کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر نہایت عقیدت سے 2-3 قدم پیچھے ہو کر بیٹھ گئے۔ ان میں سے ایک نے مٹھائی کا بڑا ڈبہ ان کے قدموں میں رکھ دیا۔ بھائی، یہ کیوں لے آئے؟ اس کی کیا ضرورت تھی؟ خیریت سے ہونا؟ علامہ صاحب نے آنے والوں سے پوچھا۔ جی حضرت جی، اللہ پاک کا کرم ہے، اس کے فیض سے ابا جی کی ضمانت ہو گئی ہے۔ طبیعت خراب تھی اس لیے خود زیارت کے لیے حاضر نہیں ہو سکے، حالانکہ ضد کر رہے تھے کہ جب تک حضرت جی کی زیارت نہیں کر لیتے انہیں سکون نہیں ملے گا۔ اللہ تیرا شکر ہے، علامہ صاحب جنہیں آنے والے حضرت جی کہہ رہے تھے اب میری طرف متوجہ ہوئے اور نہایت شفقت کے ساتھ بولے۔ میرا اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، جس نے اس کے دامن کو تھام لیا وہ طوفانوں سے نکل جاتا ہے، مصائب کی تلوار ان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی۔ اللہ جل شانہ ہر شے پر قادر ہے، اس کی رضا کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس نے وعدہ کیا ہے اور اللہ کا وعدہ حق ہے۔ وہ ذات اعلیٰ مقام فرماتی ہے، مجھ سے خلوص دل سے مانگو میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ حضرت جی نے اچانک رک کر میرا نام پوچھا۔ شاہد، میں نے ان کو اپنا نام بتایا تو وہ بولے، سبحان اللہ، یعنی محبوب اور عزیز، گواہی دینے والا۔ میرے بچے، اللہ تمہیں اس نام کی صداقت سے مالا مال کرے اور تمہیں حق گوئی اور حق شناسی کی قوت سے سرفراز کرے۔ ہاں، تو میں عرض کر رہا تھا، اس کائنات میں جو کچھ ہے رب ذوالجلال کے کن کی محتاج ہے، ہر حروف میں اس کی عطا اور حکمت ہے، اس لیے تو قرآن پاک معطر و مؤثر ہے، یہ کلام الہی ہے۔ اللہ پاک جس زبان میں کلام فرماتا ہے وہ یہی زبان ہے۔ قرآن پاک اجاز ربی ہے، اور جو اس کلام ربی کو سمجھ لیتا ہے اس نے گویا شفا کے دستے قدرت کو حاصل کر لیا۔ کلام الہی طالب اور مطلوب کو اپنی شفا بخشتا ہے۔ تم نے جو پوچھا وہ میں نے کہہ دیا۔ اللہ کے کلام سے اس بچے کو شفا مل گئی، ان کے بے گناہ باپ کی ضمانت ہو گئی۔ اب بھلا میں اس کلام کے نام پر صدقہ خیرات اور نذرانہ کیوں طلب کروں؟ میں وہ والا تاجر نہیں ہوں جو جنس بیچتا ہے، تاجر تو ہوں، میرا سودا میرے اللہ سے طے ہوتا ہے، میرے کاروبار میں نفع ہی نفع ہے۔ اس کے کلام سے بد عقیدہ لوگوں کو بھی شفا کے راستے پر لاتا ہوں تو وہ میری سختیاں دور کر دیتا ہے۔ سنو میاں، اللہ کا کلام سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں بیچا جا سکتا۔ اللہ سے یہ کاروبار کرنا اچھی بات ہے، یہ 10-20 روپے کا تیل خرید کر دیے جلانے کا عمل اللہ کی شریعت نہیں ہے۔ یہ عقائد ہو سکتے ہیں، میں اور تم کون ہو سکتے ہیں؟ مجھے بتاؤ، اللہ کے انبیاء، صحابہ کرام، خلفائے کرام، ائمہ کرام، اولیاء کرام میں سے کسی نے اس روایت کی بنیاد رکھی ہے؟ میاں، یہ کام ممنوع ہے۔ گمراہ مسلمانوں نے نعوذ باللہ قرآن پاک کی مقدس آیات کو غلط کاموں کے لیے استعمال کیا ہے۔ وہ جہنمی ہیں اور جہنم کی آگ میں جلتے رہیں گے۔ یہ عمل باندھنے اور توڑنے والے لوگ ہیں۔ میں تو صرف یہ جانتا ہوں، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے کو کشف حاصل ہو جاتا ہے، اس کی دعا میں تاثیر ہوتی ہے۔ اللہ اپنے محبوب کلام کی مدد سے مانگی گئی دعا رد نہیں کرتا۔ حضرت جی کی باتیں میرے دل میں اتر گئیں، ایسا لگا جیسے شریعت اور روحانیت کے راستے جدا جدا ہیں مگر منزل ایک ہے۔ ایک قاعدے کی پابند ہے اور ایک راہ فنا کی مسافر ہے۔ ان کی باتوں کو سمجھنے کے لیے دماغ سکندری کی ضرورت پیش آتی ہے، لیکن ذرا سے غور نے مجھے یہ نقطہ سمجھا دیا تھا کہ اصل روحانیت شریعت کے باطن سے جڑی ہوتی ہے۔ میں جنہیں ایک صرف امام مسجد سمجھ رہا تھا، ان کے کاسہ دامن کو اللہ نے روحانیت کی دولت سے بھرا ہوا تھا۔ آنکھوں میں جگرتوں کے دیپ شب بیدار ہونے کی علامت تھے۔
सारी रात अल्लाह का जिक्र करते रहते, फजर की नमाज के बाद कुरान पाक की तालीम देते और साहिलों के मसाइल सुनते। 8-9 बजे सुबह से लेकर नमाज ज़ोहर तक नींद लेते और फिर बेदार होने के बाद मुसीबत ज़्यादा लोगों की दाद रसी करते। इसके सिवा उनकी कोई मसरूफियत नहीं थी। उनकी तालीमात देखकर मुझे खुद पर नदामत महसूस हुई। एक तरफ कुरान बिस्मिल में नार नूर था और दूसरी तरफ अमलियात के जुल्मत गद्दे में खड़े अपने दिए जलाने वाले खड़े नजर आ रहे थे। एक फितरी और अजली रोशनी और उजाला और दूसरी तरफ बेसबात चिराग। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, रूहानियत की मंजिल मेरी जुस्तजू थी, लेकिन मैं इस राह की भूल भुलैयों में पड़ गया था और सीधे रास्ते पर जो कुरान दिखाता इसे नहीं अपना रहा था। न जाने क्यों, ईमान की कमजोरी की वजह से या फिर दुनिया की लज्जत ने मुझे अपना गर्विदा बनाया हुआ था। दुनिया के गुलो गुलजार देखकर मैं खल्क की तमन्ना से आजिज आ गया था। दुनिया शफक की लालियों जैसी भली लग रही थी मुझे। उसकी निजारगी ने मुझे नीम बिस्मिल कर दिया था। हालांकि मैं जानता था अगर मैं ख्यालो अमल की इस पगडंडी पर चलता रहा तो सुबह खज़ां मुझे रास्ते में ही पकड़ लेगी और मैं उमर रसीदा बरगद की तरह इधर ही कहीं गुमनाक रास्तों पर बिखर जाऊंगा। हजरत जी नजर बिन इंसान थे, आफनी है। उन्होंने मेरे अंदर के एक कोढ़ मादा परस्त इंसान को देख लिया, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। अलबत्ता 2 लफ्जों में मुझे सब कुछ समझा दिया था, बेहतर अमल और राहबर कुरान पाक है। मैंने उनके इस इरशाद को नसीहत समझा और अहद किया कि इस पर कायम रहूंगा। 10 बजे के करीब मैं मलिकवाल चला गया। बड़े मलिक साहब खेतों में गए हुए थे। नसीर और शाह साहब अभी तक सोए पड़े थे। चाची ने मुझे देखते ही हाथों हाथ लिया। वो सख्त नाराज थी। कहाँ चला गया था तू? तेरे लिए देसी घी से हलवा बनाया था, दोपहर तेरा इंतजार करती रही। अच्छा अब खा लेता हूँ चाची। चाची के हाथों का बना हलवा निहायत लजीज होता था। वैसे भी भूख से निढाल था। हलवे का सुनकर पेट में आंतों ने नादिदों की तरह उछल कूद शुरू कर दी। एक लुकमा भी नहीं बाकी बचा। तुम्हारे हिस्से का हलवा तो गाजी खा गया है। वो क्यों खा गया? कहाँ है वो? रात को आया था, उधर बावर्ची खाने में घुस गया और जिद करके खा गया। ये जिनका बच्चा भी बड़ा शोहिदा है। चाची गाजी का जिक्र करते करते हंसने लगी। चाची गाजी कब आया था? मेरे ज़हन में खुलबली सी मची। यही कोई इशा के बाद की बात है। कहता था चाची आज तो तुम्हें देग पकानी चाहिए। मैंने कहा देग भी पका दूंगी, लेकिन फिर कभी। कहने लगा हाय चाची अगर तू आज हलवे की देग पकाकर मुझे दे देती तो तेरी सारी मुरादें पूरी हो जाती। हाँ मुझे याद आया शायद पुत्र, अगर मैं गाजी को हलवे की देग पकाकर दे दूं तो क्या मेरी सारी मुरादें पूरी हो जाएंगी? छोड़ चाची, तू गाजी की बातों में आ गई है। वो शरारती है। अभी रात को वो मुझे कह रहा था। कुछ कहते कहते मैं बौखला गया। हैं? तू रात भर आया नहीं, तुझे कहाँ मिल गया? चाची ने मेरी बात पकड़ ली। नहीं, दरअसल वो 2 रोज पहले मिला था। मैंने बात बदल डाली। कहता था मैं चाची के हाथों से हलवा खाना चाहता हूँ। मुमकिन है उसने आपको लालच देने के लिए ये कह दिया हो, क्योंकि वो बाबा जी और शाह साहब की मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकता। हाँ ये तो है। चाची को जैसे समझ आ गई। चाचा जी कब तक आ जाएंगे? मैंने पूछा। अब तक इन्हें आ जाना चाहिए, चाची ने बताया। इस असना में हवेली की गेट पर किसी ने जोर जोर से कुंडी खटखटाई। लगता है मलिक साहब आ गए हैं। चाची ने सर पर चादर सीधी की, लेकिन फिर रुक गई। लेकिन वो कुंडी क्यों खटखटाएंगे? दे खैर सखिया, बरी इमाम सरकार के नाम की खैरात दे मलकानी। बाहर से आने वाली आवाज के साथ भारी घुंघरू की छन छन सुनाई देने लगी। ऐसे लगा जैसे बहुत सारे बैल अपने गले में घंटे लटकाए उसको खटखटाते हुए भाग रहे हैं। आई बाबा आई, चाची ने फकीर की सदा सुनते ही कहा और जल्दी से अंदर से एक रंगदार बड़ी सी बेल बूटों वाली चादर और कुछ रुपए मुझे थमाकर बोली, जाओ इन्हें दे आओ। मगर ये सब क्या है? मैं हाथ में पकड़े रुपए और चादर को देकर पूछने लगा। चादर से मुझे जुलेखा की महक आ रही थी। पहले दे आओ फिर बताऊंगी, वो आहिस्ता से बोली, जैसे इन्हें डर हो कि कोई सुन ना ले। चाची की उस राजदारी से मेरे कान खड़े हो गए। मैं हवेली के दरवाजे पर गया। बाहर 4 मलंग खड़े थे। उन्होंने एक बड़ी सी सब चादर को चारों कोनों से पकड़ा हुआ था। उनकी रानों पर और कमर पर बड़े बड़े से पीतल के घुंघरू और जंजीरें बंधी हुई थी। वो हिलते तो घुंघरू जोरदार आवाज से बजने लगते। मुझे देखकर मलंग ने चादर आगे की। मैंने रुपए इसमें डाल दिए। एक कीना सार मलंग ने मुझसे चादर ले ली और जाते जाते बोला, मलिक साहब को हमारा सलाम बोल देना। कटाली के मलंग आए थे, नजराना पहुंच जाएगा। मैं अंदर आ गया। दे आए? कुछ कहा तो नहीं? चाची ने राहदारी में सरे सीमा नजरों से देखते हुए पूछा। मैंने मलंग का पैगाम चाची को दे दिया और पूछा, चाची ये क्या मामला है?
चाची ने मेरे लबों पर हाथ रख दिया। चुप कर, मलिक साहब आने वाले हैं, उनसे पूछ लेना। 1 घंटे बाद मलिक साहब आ गए। चाची ने इन्हें मलंगों की बात बता दी। मुझसे कहने लगे, ये बरी इमाम साहब सरकार के शागिर्दों के मुरीदों का जट्टा था। इसको ये लोग अपने जुबान में डाली कहते हैं। डाली क्या मतलब? यानी उर्दू जुबान में जिसे शाह कहते हैं। मुझे नहीं पता, मलिक साहब कहने लगे। मैं ज्यादा नहीं जानता, मुझे सिर्फ मालूम है कि जब मैं रावलपिंडी से नूरपुर शाहम हजरत शाह लतीफ रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाजिरी देने गया तो मुझे ये वहाँ उनके बारे में मालूम हुआ। मैंने तुम्हें बताया था कि वहाँ एक मेरे अजीज दोस्त के पीरो मुर्शिद रहते हैं। मैं वहाँ पहुंचा तो मालूम हुआ वो पेशावर गए हैं और डाली के साथ आएंगे। मेरे दोस्त ने मुझे बताया है कि डाली दरअसल किसे कहते हैं। पेशावर में सराय जहाँ बेगम साहिबा जो गोर कटरी के नाम से मारूफ है, वहाँ हजरत बेरी सरकार की कटाली है। यहाँ बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैह साहब ने कुछ अरसा क्याम किया था। उनके मुरीदीन ने इस मकाम को महफूज कर लिया और वहाँ बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैह के मल्लंग और अकीदतमंद सारा साल आते रहते हैं। जिन दिनों बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैह में उर्स होता है, इससे 8-9 दिन पहले पेशावर में कटाली के मल्लंग और मुरीद जुलूस निकालते और खैरात इकट्ठी करते हैं। इस जुलूस को बरी इमाम की डाली कहा जाता है। सरहद के कोने खदरों से मुरीदीन डाली में शरीक होते और 8 दिन का पैदल सफर करके बरी इमाम के मज़ार पर इस वक्त पहुंचते हैं जब उर्स का पहला सूरज तलू होता है। उनके रास्ते में 8 पड़ाव होते हैं। इर्द गिर्द के मकामी लोग इस डाली का इस्तकबाल करते हैं। अभी डाली के नूरपुर शाह पहुंचने में 8 दिन बाकी थे कि मैं वापस आ गया। मेरे दोस्त ने पीरो मुर्शिद की अदम मौजूदगी में मुझे एक महजूब से मिलवाया था। वो दरबार से बाहर एक जुगी में बैठा था। मुझे देखते ही वो कहने लगा कि परछाइयां तेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी, जा पहले सलाम करके आ। मेरे दोस्त ने मुझे सलाम करने के आदाब सिखाए। बरी इमाम साहब के रोजा के करीब उनके शागिर्द और मुरीदीन भी दफन हैं। बरी इमाम के दरबार में पहुंचने से पहले इनकी कब्र पर जाकर दुआ करनी होती है, लिहाजा मैं दुआ करके आया तो मजूब बाबा ने मुझे कहा कि तुम अपने इलाके की डाली के जरिए नजराना भेज दो, परछाइयां पीछा छोड़ देंगी। मजूब के साथ एक मुरीद था जिसने मेरा मसला सुनकर मुझे नजराने की रकम और जुलेखा के इस्तेमाल शुदा चादर अस्ताल करने के लिए कहा। हमारे इलाके के ये चारों मलंग हर साल पैदल बरी इमाम साहब के मज़ार पर जाते हैं। मैंने आते ही इनसे दरख्वास्त की तो आज वो सौगात लेकर चले गए। लेकिन चाचा जी, ये सब कुछ करने का मकसद? हमने वादा किया। चुप कर जा पुत्र, मलिक साहब ने मुझे कदर नागवारी से रोक दिया। मैं अपनी बेटी को आग में नहीं झोंकना चाहता, इसके लिए अब मुझे जहाँ से आसरा मिलेगा मैं उसको थाम लूंगा। आपका यही फैसला है? मैंने पूछा। हाँ, मैं इस फैसले पर पहुंचा हूँ कि अब मैं बेशक तबाह बर्बाद हो जाऊं, मैं इस शैतानी जाल को तोड़ दूंगा। ठीक है, मैं आपके साथ हूँ। मैंने उनके लहजे में इस्तकामत देखी तो इन्हें बाबा तीले शाह और हजरत जी से मुलाकात का माजरा सुनाया और कहा, चाचा जी वो दुनियावी तमामे मुतला नहीं है। हजरत जी और बाबा तीले शाह को मैंने बहुत करीब से देखा है, हमें उनसे मदद हासिल करनी होगी। मेरी बात सुनकर मलिक साहब के चेहरे पर जिंदगी के आसार पैदा होने लगे। मेरा कंधा थाम कर बोले, तो फिर इंतजार किस बात का, अभी उनके पास चलते हैं। मैंने घड़ी देखी, हजरत जी के उठने का वक्त होने को था। हम जोर की नमाज उनके साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मेरे अंदर तमानियत के लड्डू फूटने लगे। खदशा बहरहाल था कि अगर शाह साहब को मालूम हो गया तो क्या होगा, लेकिन जब मलिक साहब अटल फैसला कर चुके थे तो मुझे अपनी जान से गुजरकर अपनी जान तक पहुंचने का हक हासिल हो गया था। बहुत से जज्बात मेरे खौफ को अपने पैरों तले रौंद कर आगे ही आगे बढ़े जा रहे थे। हमने किसी को नहीं बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं। जुलेखा हमारे साथ थी। हम कार में बैठे और कोटली बहराम से होते हुए हजरत जी की मस्जिद में पहुंच गए। नमाज जोर उनकी अमामत में अदा की। नमाज के बाद एक जमे गफरान की जियारत और दुआओं से फैज़याब होने के लिए अमट आया। हम बहुत पीछे बैठे थे। जुलेखा को हमने कार में बिठा दिया था। हजरत जी ने खवातीन को अपने हुजरे की तरफ बिठा रखा था। मैं जुलेखा को अंदर ले आया और इसे भी हुजरे में बिठा दिया। मुझे बेकरारी थी कि जल्द से जल्द हजरत जी से मुलाकात हो, इसलिए मैं बार बार इस उम्मीद पर खड़ा हो जाता था ताकि उनकी नजर मुझ पर पड़े तो मुमकिन है कि सुबह की शनासाई काम आ जाए और वो मुझे बुला लें। लेकिन नमाज असर तक हमारी बारी न आई। मलिक साहब बार बार पहलू बदलते रहे। असर की अजान के साथ ही लोग वुजू करने के लिए उठे तो मैंने मौका गनीमत जाना और फौरन हजरत जी के पास पहुंचकर इनके दस्ते मुबारक को थाम लिया। मैं जज्बात से मगलूब हो रहा था। हजरत जी ने मुझे देखा तो ऐसे बोले जैसे मुझे जानते ही ना हो। नमाज पढ़ लो भाई, फिर मुलाकात करेंगे। असर की नमाज पढ़ने के बाद मैं और मलिक साहब हजरत जी के पास पहुंचे तो इन्हें देखते ही मलिक साहब का पैमाना सब्र लबरेज हो गया। सब्र करो मेरे बेटे, अल्लाह अपने बंदों को इम्तिहान में मुब्तला करता है तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि वो अपने बंदे को सजा देकर खुश हो रहा है। बस तुम्हारी इस्तकामत और तुम्हारे ईमान को आजमाना मकसूद होता है।
अगर तू शाकिर निकला तो शुक्र से मालामाल हो जाएगा और अगर बहक गया तो गिर गया। हजरत जी मलिक साहब के हाथ पर अपना दस्ते मुबारक रखकर बोलते रहे, लो कहाँ है हमारी बेटी? हजरत जी ने हमारे दिलों की जुबान समझते हुए पूछा। मैं उठने लगा तो हजरत जी खुद उठ पड़े और हुजरे की तरफ खुलने वाले दरवाजे की तरफ रुक करके बैठ गए। जुलेखा बेटी, मलिक साहब ने उसे आवाज दी तो वो चादर में लिपटी मासूम सी गुड़िया हजरत जी के पास आ गई। हजरत जी की महफिल एक सदापोश साहिब शरीयत की मजलिस थी। न अगरबत्ती जल रही थी, लोबान, अतर और काफूर की महक से महरूम इस फिजा में सिर्फ इंसानों की सांसें घुली हुई थी। जुलेखा चादर में लिपटी हजरत जी के सामने आई। हजरत जी ने एक नजर उसे देखा और फिर नजरें हया से नीचे करके ज़ेरे लब कुछ पढ़ने लगे। जुलेखा बेटी, दिल पर बोझ सा महसूस करो तो मुझे खबरदार कर देना। उसने असबात में सर हिलाया और हल्की सी आवाज में बोली, जी। हजरत जी दोबारा पढ़ाई करने लगे। 5 मिनट मुसलसल पढ़ते रहने के बाद उन्होंने नजरें उठाई और जुलेखा की पेशानी और दाएं बाएं कंधे पर फूंक मारकर आवाज़ें बुलंद पढ़ने लगे, या शाफी भी हक के, या हफीजुम अला कुल्ले शाइन कदीर। वो मुसलसल इस वजीफे की गिरदान करते रहे। उस लम्हा मुझे एहसास हुआ जुलेखा के चेहरे पर खिंचाव के तासुरात उभर रहे थे और लब फड़क रहे थे। यूं लग रहा था जैसे वो कुछ कहना चाहती है, लेकिन किसी ताकत ने उसके होंठ पकड़ रखे थे। उसकी ये कैफियत देखकर मेरा दिल हाँपने लगा। हजरत जी आंखें बंद किए पढ़ाई करते जा रहे थे। उनकी पेशानी भी मस्कुनों से आलूदा हो रही थी। मैंने जाके हजरत जी को जुलेखा की कैफियत से आगाह कर दूं। उसके दिल पर पड़ने वाला दबाव मुझे अपने कल्ब पर महसूस हो रहा था। मैं आगे बढ़कर हजरत जी से कुछ कहने ही लगा था कि हजरत जी ने आंखें बंद किए हुए ही दस्ते मुबारक बुलंद कर मुझे खामोश रहने का इशारा कर दिया। इसका मतलब था उनकी रोशन ख्याली इर्द गिर्द के माहौल से बाखबर थी। इधर जुलेखा की हालत बिगड़ती चली जा रही थी। उसके लब किसी मरई ताकत ने इस कदर मजबूती से सी दिए थे कि उसके अंदर होने वाली जंग सीने से चेहरे तक फैल गई थी। दोनों जबड़े बार बार फैल रहे थे। आंखें दबाव से उबल पड़ने को थी, हत्ता कि उसके बाल भी बिखरने लगे थे। उसकी हालत देखकर उसके पास बैठी औरतें डर कर पीछे हट गईं, बल्कि एक कार तो हुजरे से भाग भी गई थी। जुलेखा ने दोनों हाथों से अपने जबड़ों को थाम रखा था। लगता था जैसे उसके अंदर तूफान बर्पा करने वाली कुव्वत उसके जबड़ों का कैद खाना तोड़कर बाहर निकल जाना चाहती है। मैं ही नहीं, मलिक साहब भी उसकी ये हालत देखकर लरज उठे थे। उसकी हालत देखकर वो गुब्बारा याद आ रहा था जिसमें हाथ से ज्यादा हवा भर दी जाए तो वो फट जाता है। जुलेखा के चेहरे को देखकर भी यही लगता था कि कहीं अंदरूनी दबाव उसके परखींचे ना उड़ा दे। इसके चेहरे के खदोखाल बिगड़ते चले जा रहे थे और इधर हजरत जी मुसलसल पढ़ते जा रहे थे। फिर उसके बाद वो हुआ जिसका आज भी तस्वर करता हूँ तो पाँव तक मुझ पर कपकपाहट तारी हो जाती है, बदन के बाल खड़े हो जाते हैं। ऐसा दिल खराश और खौफनाक मंजर मैंने पहले नहीं देखा था। जुलेखा की कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई थी, या उसके अंदर सोरश बर्पा करने वाली ताकत का गजब आखिरी हद को छू चुका था। वो दोनों हाथ फैलाकर एकदम खड़ी हो गई और उसका बदन उसके साथ ही फैलने लगा। उस लम्हे हजरत जी पूरे जाओ जलाल के साथ खड़े हो गए और उन्होंने जोर से अपना दायां हाथ जुलेखा के सर पर मारा और इसके सिले हुए लब अंदरूनी तूफान के रेले ने ऐसे तोड़ दिए जैसे किसी डैम के बंद पानी के दबाव की वजह से एकदम खोल दिए जाए तो पानी पूरी रफ्तार से बह निकलता है। जुलेखा ने जोरदार गड़गड़ाहट के साथ खून भरी कै की जो दूर दूर तक फैल गई। हजरत जी के कपड़े भी खूनी कै से आलूदा हो गए। उस लम्हे उन्होंने कादिर बख्शो आवाज देकर पानी लाने के लिए कहा। तब वो भागता हुआ गया, लम्हों में एक कटोरे में पानी भर लाया। जुलेखा कह करके पीछे को गिर गई थी, बुरी तरह हाँप रही थी। पूरा माहौल उस कह के ताफुन से आलूदा हो गया था। स्याही माइल कह के कुछ छींटे मुझ पर भी पड़े थे। ये देखकर बहुत से साइल भाग गए थे। हजरत जी ने पानी लेकर उस पर दम किया और जुलेखा के चेहरे को उस पानी से धो दिया। उनके चेहरे पर अब इत्मीनान नजर आ रहा था। शुक्र है उस ज़ाते करीम का जो इंसान को खन्नास के शहर से पाक करने में हमारी मदद फरमाती है। हजरत जी ने चुल्लू भर पानी अपने चेहरे पर डाला और अपने साहिलों की तरफ देखकर बोले, क्या मुमकिन है आप लोग आज चले जाएं? हजरत जी के मोतकिद बड़े फरमा बरदार थे, सब वापस चले गए। अब मेरे और मलिक साहब के सिवा कोई और साहिल नहीं था। शायद मियाँ, हजरत जी मुझसे मुखातिब हुए, मैं गुस्ल करके आता हूँ। जुलेखा बेटी कुछ देर बाद होश में आ जाएगी। फिर वो कादिर बख्श की तरफ रुक करके बोले, कादिर बख्श सफाई कर देना। मलिक साहब बेहोश जुलेखा के पास बैठ के उनकी आंखें तशक्कुर भरे आंसुओं से भीगी हुई थीं। बेटी का सर गोद में रखकर वो ममता भरे अंदाज में उसके बिखरे बाल संवार रहे थे। मेरे मौला मेरी सख्तियां माफ कर दे। वो अपने जिगर के टुकड़े का चेहरा दोनों हाथों में लेकर बार बार अल्लाह मियां जी से दुआ कर रहे थे। मैंने कादिर बख्श के साथ मिलकर मस्जिद के हाल को पानी से साफ किया।
ताक में एक गिलास रखा हुआ था जिसमें आटा डालकर उसमें अगरबत्तियां लगाई हुई थीं। फिजा में अभी तक कैक की नागवार बू रची हुई थी। मैंने अगरबत्तियां जला दी। थोड़ी देर बाद ही खुशगवार महक फैलने से बदबू खत्म हो गई।